So students, ray optics lecture number 2. What is the power of a plane mirror? Anybody? What is the power of a plane mirror? What is? हाँ जी बोलो. Afternoon, sir. Very good afternoon. What is the power of a plane mirror? Students, power is equal to reciprocal of focal length. Power is equal to reciprocal of focal length. Agreed? And focal length of a plane mirror is infinity. The power of a plane mirror is what? 1 upon infinity, that is 0. Power of a plane mirror is 0. नोट करते जाइए. वैसे जो आज का लेक्चर है ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, सो दैट जैसे ये ख़त्म होगा ये अपलोडिंग पे लग जाएगा तो आधे घंटे में आपको ये यूट्यूब पे मिल भी जाएगा. तो पावर ऑफ ए प्लेन मिरर इज 0 बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज infinity. What is the unit of power, students? Unit of power क्या होता है? Unit of power is diopter. D-I-O-P-T-R-E. Diopter. 1 diopter is equal to 100 upon focal length in centimeter. तो that is called diopter. Spelling होते हैं इसके D-I-O-P-T-R-E. Okay. What kind of inversion takes place in a plane mirror? Plane mirror में किस तरह की inversions होती है? Lateral और front back दोनों होती है. Lateral भी होती है, front back भी होती है. Lateral कब होती है? जब 2 dimensional object हो, जैसे अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश. एंड फ्रंट बैक कब होती है? जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, जैसे पेन. कोई भी चीज़ जिसको आप हम खुद भी 3 डायमेंशनल में आते हैं, अगर हम पैर हिलाएंगे तो हमारा सर नहीं हिलेगा. दैट इज कॉल्ड अ फ्रंट बैक रिवर्सल. ओके. अगर 2 प्लेन मिरर एक दूसरे को फेस करते हों, if 2 plane mirrors are facing each other, if 2 plane mirrors are facing each other like this and they are inclined at an angle theta, हमारे पास 2 प्लेन मिरर हैं, वो inclined हैं at an angle theta. Correct? So यहाँ how many images will be formed? How many images will be formed? If the 2 plane mirrors are inclined at an angle theta, how many images will be formed? कितनी images बन जाएंगी? You know, अगर 2 प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, जैसे मैंने दिखाया है स्क्रीन पे, देन नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लैक्शंस. तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं स्टूडेंट्स, दैट इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लैक्शंस. मल्टीपल रिफ्लैक्शंस होंगी. मल्टीपल रिफ्लैक्शंस किस ऑप्टिकल गैजेट का व्हाट डू यू कॉल प्रिंसिपल है? पेरिस्कोप एंड कलेडियोस्कोप.
कैलेडोस्कोप आपने सुना होगा। तो स्टूडेंट्स, जब दो इंक्लाइन मिरर्स एंगल थीटा पे हों, देन हम कैलकुलेट करेंगे 360 अपॉन थीटा। We will calculate 360 upon theta. अगर 360 upon theta even integer है, if 360 upon theta is an even integer, तो number of images बनेंगी 360 upon theta minus 1। मान लीजिए हमारे पास दो इंक्लाइंड प्लेन हैं और वो, आप लिखिए क्वेश्चन, टू मिरर्स आर इंक्लाइंड, टू मिरर्स आर इंक्लाइंड two mirrors are inclined at an angle of 60 degree, at an angle of 60 degree, then how many images, then how many images are formed? अगर हमारे पास दो मिरर्स इंक्लाइंड हैं एट एन एंगल थीटा, तो बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी? एनीबडी एल्स? How many images will be formed? Yes, please, students. हमारे पास 360 अपॉन थीटा, अभी मैंने बोला इज एन इवन इंटीजर, तो 360 अपॉन थीटा अपॉन 60, ये कितना आया? 6। 6 क्या है? व्हाट इज 6? इवन और ऑड? Even. तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी जी? 5 images बनेंगी, because n is equal to 360 upon theta, तो 6 minus 1, n is equal to 5 images. So all students, is it clear that you get 5 images if the two mirrors are inclined at an angle of even, means 360 upon theta, theta is 60 degree here, तो 360 upon 60 minus 1, that is 5. Similarly, अगर ये दोनों के दोनों मिरर 90 डिग्री पे हो, दोनों के दोनों मिरर 90 डिग्री पे हो, तो कितनी इमेजेस बनेंगी? आप अगर 90 डिग्री की बात कर रहे हो तो कितनी इमेजेस बनेंगी? Very good, because 360 upon 90 is 4, 4 minus 1, 3. ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर 360 अपॉन थीटा ऑड इंटीजर हो तो, राइट ऑन,
if theta is such that 360 upon theta is an odd integer, then number of images formed will be how much? See, 360 upon theta कितना लें हम ताकि ये ऑड आए? What should be the value of theta? बोलिए. It should be an odd eye. मान लीजिए 360 अपॉन थीटा हमें चाहिए 7 या हमें चाहिए 8 तो इवन हो गया, चाहिए 7 चाहिए या 3 चाहिए, चलो 3 चाहिए, तो थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री. तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी हाउ मच? ओनली 3. इसमें वो n-1 वाला लॉजिक नहीं चलेगा. मीन्स दैट अगर 360 अपॉन थीटा ऑड इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3. नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3 डियर स्टूडेंट्स. अब हम एक और चीज सीखते हैं इसमें. इफ थीटा इज 40 डिग्री and which is not a complete part of 180 degree, right on. If theta is equal to 40 degree, which is not a complete part of 180 degree, then number of images will be how much? 360 upon 40, that is 9. अगर तो 40 कंप्लीट पार्ट ऑफ 180 डिग्री है फिर तो n-1, फिर तो 4-1 लगाएंगे. सिंस इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ 180 डिग्री देन इट इज गोइंग टू बी 9. अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज बताइए, ये पहले ये क्लियर हुआ आपको सारा? इंक्लाइन प्लेन वाला ये फैक्ट क्लियर हुआ सारा? The formula 360 upon theta is clear? कोई बच्चा है जो कैमरा ऑन करेगा? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा, हम कैमरा ऑफ रखते हैं. अगर कैमरा ऑन रखेंगे तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाले को बहुत इरिटेशन होती है अगर कैमरा ऑफ होता है. इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. अब जैसे मिस्टर सैनी ने कैमरा ऑन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो बच्चे कैमरा ऑन कर सकते हैं कैमरा ज़रूर ऑन करें, राइट? अब मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा बिकॉज बहुत टाइम वेस्ट होता है फिर. अब हम चलते हैं आगे. मैं कुछ क्वेश्चंस मिरर के ऊपर जो CBSE में एग्ज़ाम्स में काफ़ी फेवरेट रहते हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं अभी. कल हमने जो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं थ्रू एन एंगल थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न थ्रू एन एंगल 2 थीटा. क्या आप इसको एक बार फिर से रिपीट करना चाहोगे बच्चे? किड्स ओके? गारबेट, इज इट क्लियर? हो गया? बेटा मेरी बात सुनो, आई एम टीचिंग यू, यू हैव टू इंटरैक्ट. आवाज नहीं आ रही गारबेट आपकी? केशव मनकोटिया, वुड यू लाइक टू रिपीट दैट वंस अगेन और इट्स क्लियर? Clear. Very good.
मिस्टर सैनी, इज इट क्लियर टू यू? वेरी गुड। आपने अच्छा, ये जो आज का लेक्चर है जैसे ही कंप्लीट होगा, ये अपलोड हो जाएगा, तो यू कैन गो टू द यूट्यूब एंड वॉच दिस लेक्चर। अब मैं आपने ऐप के बारे में बोला था। हाँ जी, सर आपने बोला था ऐप दूंगा मैं आपको एक। हाँ, वो जब आप यूट्यूब पे जाओगे उससे पहले एक 3 मिनट्स का वीडियो पड़ा है, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। ओके सर। अगर दिक्कत आई तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर जा सकते हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं सब्जेक्ट में। अब मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, राइट? उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। ये दो मिरर हैं, ये इंक्लाइंड है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाने की। किसी एक बच्चे का माइक ऑन है, ऑफ कर दो। सैनी, यस, थैंक यू। Sir, actually my mic was not working at that time. नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, Trouble with some mic settings. कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। बेटा पता क्या है, एक्चुअली ऑनलाइन में मज़ा ही बड़ा पढ़ने का। हम अपने कंफर्ट जोन पे बैठ के पढ़ते हैं, और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ऑनलाइन में हम ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में अपने अपनी जगह पे, है ना। Yes sir. अब मेरे पास दो मिरर हैं। एक तो है OM1, O को कॉमन ले लेते हैं, दूसरा है OM2, ठीक। यहां एक रे आई, मिरर OM1 से स्ट्राइक किया। हाय अखिलेश, हाउ आर यू? Fine sir. गॉड ब्लेस यू। अब कैमरा ऑन करो ना, अच्छा लगता है। तो उसके बाद ये रे आई, यहां स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद आर्यन, गॉड ब्लेस यू, ये रे रिफ्लेक्ट हुई ऐसे। ऑब्वियसली इसने रिफ्लेक्ट होने ही होना है। उसके बाद जब ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हुई तो ये रे पैरेलल टू OM1 चली गई। इसको हम लोग लेते हैं मिरर 1, इसको लेते हैं मिरर 2। मैं न्यूमेरिकल्स बहुत डिस्कस करूंगा, होप यू विल लव इट। Yes sir. और मैं न्यूमेरिकल जितने भी डिस्कस करूंगा उसके बाद आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, वो सॉल्व करनी है आपने, चलेगा? Yes sir. Yes sir. अरे मेन है ही न्यूमेरिकल फिजिक्स में, थ्योरी तो आप भी पढ़ लोगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? Yes sir. Yes sir. ओके, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, और यहां ये इंसिडेंट रे आई। जैसे ही ये इंसिडेंट रे यहां पर आके स्ट्राइक करती है, उसके बाद ये रे यहां स्ट्राइक करेगी मिरर 2 पे। उसके बाद जो फाइनल रे, दिस इज रे सपोज 1, this is ray suppose 2, this is ray suppose 3. Finally, ray 3 is parallel to mirror 1. कैसा लग रहा है पढ़ना फिजिक्स? अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों ने ना हवा बनाया हुआ है फिजिक्स को। हमारे पास देखो, हम लिमिटेड से क्वेश्चंस करेंगे, असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद आप घर में ट्राई करना। आज हम सिंपल प्लेन मिरर में चलेंगे, जब तक प्लेन मिरर के NCERT CBSE कवर नहीं होती। मेरे पास दो मिरर हैं, राइट? एक मिरर, ये मेरा हाथ, ये मिरर दूसरा हाथ। दिस इज OM1 and that is OM2. Clear? Yes sir. अब मिरर
1 के ऊपर रे, ये वाली रे स्ट्राइक करती है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर मिरर 2 पे स्ट्राइक करती है, फिर यहां से ये पैरेलल निकल जाती है किसके? मिरर M1 के, OM1 के। बताओ ये दो मिरर किस एंगल पे इंक्लाइंड हैं? व्हाट इज थीटा? कैसा क्वेश्चन, गजब। सभी बच्चे दिल करे जो मैथमेटिकली नोट करना करें, अगर नहीं करना चाहते तो ये लेक्चर आप मेरे देख रहे हो यहां 2 माइक लगे हुए हैं, एक माइक है आपके लिए, दूसरा माइक है दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ, तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और मैं इसको इमीडिएटली इस लेक्चर के बाद लोडिंग पे लगा दूंगा, तो 15-20-25 मिनट में ये लोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अराउंड 7 o'clock नोट्स बना सकते हो, ठीक। तो जिन बच्चों का कैमरा ऑन रहेगा उनको मैं उनसे नाम लेके बात भी करूंगा, इंटरेक्ट भी करूंगा। जिनका कैमरा ऑफ रहेगा, अब मैं क्या बोलूं, तो मिस्टर केशव, मिस्टर अनिकेश, मिस्टर गैरवेट एंड यस आर्यन, गॉड ब्लेस यू बेटा, आर्यन, अखिल, अनिकेश एंड ये सभी बच्चे जितने भी हैं। एंड कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कोई आइडिया दोगे आप? चलो मैं ही करूं, मैं ही करता हूं, क्योंकि ये लेक्चर यूट्यूब पे एडिटेड जाएगा, तो मैं फिर, क्योंकि जब दूसरे लोग देखेंगे वो पक जाएंगे, बोलेंगे यार ये पॉज लेके खड़े हो गए हैं ना। अब लाइव में तो मैं पॉज लेके खड़ा हो सकता हूँ, यूट्यूब पे तो बंदा फिर स्किपिंग पे जाएगा। तो अब मैं एक लॉजिक लेता हूं, इफ दिस एंगल इज थीटा, हाँ जी, तो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। हम बल्कि उल्टा बोलें, हम स्टेटमेंट में बोलें कि ये एंगल थीटा पे स्ट्राइक करती है, तो ये एंगल भी थीटा हुआ ना? अच्छा, ये एंगल I और ये एंगल भैया R, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा है, ये थीटा प्लस I प्लस R, ठीक है। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग इट? बराबर आ रहा है ना, क्लियर? राइट। अब ये एंगल अगर थीटा है स्टूडेंट्स, तो ये दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज I एंड R, तो दिस एंगल will be what? That will also be theta. Yes, sir. And if this is theta, so this angle is also theta. बोलो क्यों थीटा? मैं आपको बताता हूं। ये जो रे 3 है ये OM1 के पैरेलल है। रे 3 OM1 के क्या है भैया? पैरेलल है। तो रे 3 कितना एंगल बना रहा है? थीटा ही बनाएगा ना, क्योंकि OM1 हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो इट मींस ये एंगल भी क्या होगा? तो माय डियर चिल्ड्रन, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा क्या होएगा? तो थीटा कितना आया? 60 डिग्री आया कि नहीं? अरे यार ये 3 थीटा हो गया ना। दिस इज 3 थीटा इक्वल टू 180। दिस इज 3 थीटा इक्वल टू 180। इज इट क्लियर और नॉट? अब आपको ये क्लियर है ये थीटा कैसे है? ये वाला मुझे लग रहा है यहां आपको थोड़ा डाउट है ना? चलो मैं अब इस डाउट को दूर भी करता हूं। मेरे साथ बोलो, एक बच्चा बोलो, विपिन सर।
Repeat, sir. is for the students, Inform the students. by the students. By the students. यस अब मेरे बच्चों ये थीटा प्लस आई, ये थीटा प्लस आई किसके इक्वल होगा भैया? ये नॉर्मल है कि नहीं? ओ एन 1। Yes, sir. तो यार ये एंगल 90 हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो थीटा प्लस आई 90 हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको मैं थीटा नहीं मानता हूं, मैं इसको एक्स मानता हूं, तो एक्स प्लस आर भी 90 हुआ ना? Yes, sir. X is equal to 90 minutes. ना मेरे बच्चे, अगर हम इधर से देखें तो इधर से भी तो 90 है ना यार, Yes, sir. तो x प्लस आर भी 90 हुआ ना? हे भगवान, कैसे हो आप? इधर देखो, मैं इसको जरा सीधा करता हूं। सर वो समझ गया। अरे कोई बात नहीं यार, इसी को तो पेशेंस बोलते हैं। थीटा, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये एंगल एक्स। अब जरा हमको बताइए x प्लस आर किसके बराबर होगा? 90। 90. मैं 2 मिनट पंजाबी बोलना। Yes, sir. हाँ, हुण x प्लस आर किदे इक्वल है? 90। तो थीटा प्लस आई भी किदे इक्वल है? 90. तो फिर यार इथे वेद पढ़ने हैं, x प्लस आर इक्वल टू थीटा प्लस आई। Yes, sir. ओ भाई साहब, आई किदे बराबर है? आर दे। R is एक कट गया, Yes, sir. तो x बराबर थीटा। Equal to theta. सो सिंपल, हाउ इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये न्यूमेरिकल सीबीएसई में बड़ा अच्छा माना जाता है। एक्चुअली हम प्लेन मिरर को पता है कुछ भी नहीं जब बोलते ओ प्लेन मिरर। कल क्वेश्चन किया था, इफ यू रोटेट एन एंगल, डियर ऑल स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस यूट्यूब आल्सो, मैं बोल दूं ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं कांगड़ा से, टियारा गांव से, बहुत ही ब्यूटीफुल गांव है। हाँ आर्यन क्या बोला, दोबारा बोलना। ओके ठीक है, तो ये नेम आर्यन है, ये सभी बच्चे बोलता हूं, तो ये सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये लेक्चर है नेचुरल लेक्चर, क्लासरूम लेक्चर, तो इसमें आपको हमें झेलना पड़ेगा, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो कि एक्स को थीटा मैंने प्रूव कर दिया, नाउ थीटा इज ये थीटा, तो ये भी फिर थीटा। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। यू होप इट इज क्लियर। नोट, अब मैं आपको टाइम बचाऊंगा, नोट नहीं करना। आप कर भी लो तो ठीक है, जिसने नहीं नोट किया तो ये आपके पास आ ही जाएगा। अब मैं इसको रब करके एक और कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। बहुत ध्यान से देखना न्यूमेरिकल्स, मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा वो माइंडसेट से निकाले हुए हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल नंबर 3, हमारे पास 2 प्लेन मिरर हैं। हमारे पास 2 प्लेन मिरर हैं एंड ये प्लेन मिरर M1 M2 M1 डैश M2 क्लियर? वी हैव 2 प्लेन मिरर्स, करेक्ट? अब इस प्लेन मिरर में अ रे एंटर्स, ओके? बहुत रिलैक्स होके समझना है, टेंशन फ्री होके समझना है। फिर ये रिफ्लेक्ट हुई, फिर 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 ये बाहर चली गई। अब ये जो 2 प्लेन मिरर हैं,
इन दो प्लेन मिरर के बीच में ये जो रे ऑफ लाइट है इसकी n रिफ्लेक्शंस हुई। कितनी रिफ्लेक्शंस हुई? n रिफ्लेक्शंस हुई। और ये प्लेन मिरर का जो लेंथ है m1 m2 इक्वल टू m1 डैश m2 डैश, ये है हमारे पास 10 मीटर। कितनी लेंथ है प्लेन मिरर की? 10 मीटर है। आप इमेजिन करो ना, जैसे ये मेरे पास कीबोर्ड है, ये एक प्लेन मिरर है, ये मेरे पास दूसरा प्लेन मिरर है, ठीक है। इनकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर, और पैरेलल है ये प्लेन मिरर, ठीक है। अब ये जो प्लेन मिरर है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज 1 मीटर। Mr. Keshav Mankotia, Mr. Anikesh, Mr. Sani, Mr. Aryan, hope it is all clear. Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चे कैमरा ऑन कर लो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब देखो, अगर आप कैमरा ऑन रखते हो मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा। अब देखो इसमें क्या है कि एक एंगल दे दिया गया, ये 45 डिग्री पे ये रे इंसिडेंट होती है विद द नॉर्मल। ये n रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर निकली। वो n रिफ्लेक्शंस कितनी है? मैं फिर से इस कॉन्सेप्ट को, इस स्टेटमेंट को दोहराता हूं। मैं 2 प्रॉब्लम कराऊं, 3 प्रॉब्लम करवाऊं, 4 प्रॉब्लम करवाऊं, उसी प्रॉब्लम से अगले जन्म में जब आप जाओगे तो पुनर्जन्म याद आएगा। वो प्रॉब्लम आपको भूलेगी नहीं। ये मेरा चैलेंज है। न्यूमेरिकल हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रादर हम न्यूमेरिकल के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल के हर पॉइंट को खोल देते हैं। तो अब हमने न्यूमेरिकल की पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया। मेरे पास 2 प्लेन मिरर हैं। प्लेन मिरर m1 m2, दूसरा है m1 डैश m2 है। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. इसका लेंथ 10 मीटर है। Yes, sir. इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये d, ये 1 मीटर है। Yes, sir. ये रे एंटर की 45 डिग्री पे है। Yes, sir. ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर निकली, n रिफ्लेक्शंस है। Yes, sir. है नहीं है? निकालनी है। Yes, sir. हाँ, ये कहां से है? ठीक। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं? सबसे पहले तो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट होता है यूएसएस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट। एक बच्चा मुझे मिला था मैम के ऑफिस में, वो है प्रेजेंट? No, sir. अच्छा, यूएसएस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट क्लियर हुई। अब आता कॉन्सेप्ट, एओसी, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अब एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, इसमें क्या लगेगा यार? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लगेगा? लॉज ऑफ, इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में ये एंगल 45 डिग्री है, तो भाई साहब ये एंगल भी 45 डिग्री है, Yes, I will do. है ना? Yes, sir. और ये हमारे पास है x, यानी कि इसको हम ले हम p, इसको ले q, इसको ले r।
ओके, एक को ले हम P, एक को ले Q, एक को ले R, करेक्ट। तो अमनदीप, वेलकम अमनदीप, लेट हो गया भैया। चलो मैं अब इस पे नहीं, जो बच्चा लेट आ रहे हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राइट। तो अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल PQR। भाई साहब ये है परपेंडिकुलर, कौन? PQ। PR कौन है? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है? माता ट्रिग्नोमेट्री के पास चलते हैं। जय माता दी। क्या बोलती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस? हाँ, ये बोली बच्ची सुहानी। सुहानी बेटे कैमरा ऑन कर ले। तो टेंजेंट 45, परपेंडिकुलर कौन है? PQ, बेस कौन है? PR। आप उल्टे होके देख लो, मतलब आप लोगों को ऐसी ट्रायंगल्स की आदत है ना सिद्धि, मैंने उल्टी दिखाई हुई है यहां। तो PRX, तो भैया टेंजेंट 45 कितना होता है? 1। हाँ जी, अब बोलो भाई। PQ कितना है? 1 मीटर। PRX, तो X कितना आया? 1 मीटर। तो सुहानी, अखिले, अनिकेश, मनकोटिया साहब, कौंडल साहब, सैनी साहब, अब देखो इज्जत दे दी आपको, साहब बोल दिया। सुहानी मैम देखो है, खुश कर दी सभी लोग। अब सभी लोग देखो, एक रिफ्लेक्शन में ये कितना हॉरिजॉन्टल ट्रेवल किया? X, यानी कि कितना ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल? तो भैया n अगर रिफ्लेक्शन है तो nx मस्ट बी इक्वल टू 10 मीटर। तो n इंटू 1 इक्वल टू 10, तो n कितना होएगा? 10। मीन्स आफ्टर 10 रिफ्लेक्शंस ये रे बाहर आ जाएगी। कैसा लगा? हाई, अरे यार वेपन्स आर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड विद द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मार्क्स भी आने चाहिए आप लोगों के अच्छे वाले, राइट। मैं आपको तो बात बोलूं, हमारी 1 आवर क्लास से कुछ नहीं होने वाला। अभी तो हम लगाते हैं, फिर अगर आप बर्दाश्त कर पाओगे तो फिर हम डबल कर देंगे, क्योंकि हमें मार्क्स लेने हैं, राइट। ये मैं ना एक्चुअली हिमाचल के एक एक स्कूलों में जाके बड़े बड़ी फुकरियां मार के आया हूं। ये पंजाबी बंदे दा प्रॉमिस है, मैं बच्चों के साथ हमेशा खड़ा हूं, जब बोलोगे। आपके पास अब चांस है प्रूव करने का कि सर ऐसी मत छोड़ो लंबी लंबी, अब बताओ हमें रात को डाउट्स करवाओगे? बिल्कुल करवाएंगे, बस अपना नेट बचा के रखो। तुम मुझे अपना नेट दो, मैं तुम्हें फिजिक्स दूंगा, राइट। वो खून दो, आजादी दूंगा ना। पेरेंट्स को पास में बिठा लिया करो, मम्मी पापा दादा दादी सबको पास में बिठा लिया करो, वो भी खुश हो जाएंगे, राइट। एक ना सभी बच्चे दादा दादी बुजुर्गों के पास 15 मिनट बैठा करो। मैं कहता हूं मेरी क्लास ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठ के लगाया करो, ठीक? ओके, गॉड ब्लेस यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर 10 रिफ्लेक्शंस ये रे बाहर निकल के आ जाएगी। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? तो अब हम अगले न्यूमेरिकल पे चले। नोट करो ना करो, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, आज तो साथ के साथ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, चले शुरू करें। अच्छा, आपको ये तो नहीं फील हो रहा कि ये ऑनलाइन क्लास चल रही है? ऐसा तो नहीं फील हो रहा? हाँ, बिल्कुल ऑफलाइन जैसी क्लास, बल्कि ऑफलाइन से भी ज्यादा बेटर है। घर में बैठे हो, इधर से कैमरे के इस पार्ट से कुछ भी खा लिया। अब मैंने भी यहाँ कुछ रखा हुआ है, किसी को क्या पता लगता है, ठीक है ना। तो चलो एक प्रॉब्लम और करें अब। चलो ठीक है। प्लेन मिरर इससे ज्यादा ना हमने करना है, +2 के लिए बहुत है। और हम ना 2 मिरर लेते हैं पैरेलल, ठीक है। 2 मिरर लेते हैं
पैरेलल पैरेलल। अरे एक चीज बताऊं आपको, समझ तो हमें अपनी भाषा में ही आती है यार। मैं आपको बताऊं, मैं एक स्कूल में सेमिनार करने गया, पटियाला से थोड़ी दूरी में एक गांव में। then the management said that you have to speak in English, because the parents must learn that we people have invited who is very affluent in English. I said, okay, no problem. So when I went there, they were all village people from Punjab. They came on maximum on tractor trolleys to listen the lecture. I said, very good morning parents, this is a great exuberance on this conference, and I just have got this an opulence to talk to you with the comments. बोलता की बोलना तू, कुछ समझता नहीं रहा। तो आता तो हमें अपनी भाषा में ही है। Am I right? और मैं पंजाबी में सोच रहा हूँ, हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप हिंदी में सोचते हो, हिंदी में बोलते हो, राइट? तो इसलिए लैंग्वेज यू कैन आस्क मी, हिंदी के लिए 1 दबाएं, पंजाबी के लिए 2, इंग्लिश के लिए 3, मंडियाली के लिए 4, हरियाणवी के लिए 5, भावलपुरी के लिए 6। तो मैं कहता हूं मिक्स कर देते हैं 7 सब ऑल, राइट? आप कभी हरिद्वार घूमने गए हो? हरिद्वार में ये चलो, एक मंदिर है, उसके लेफ्ट एंड वहां पर भगवान खड़े हैं ऐसे, और इधर भी मिरर लगा हुआ है, इधर भी मिरर लगा हुआ है, तो बहुत सारी इमेजेस दिख रही हैं। अगर 2 मिरर पैरेलल हो तो बीच में अगर कोई इमेज हो, ऑब्जेक्ट सॉरी, तो हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड? So it will depend on the number of times the ray of light reflects on the plane mirror. I love it यार, the way you are speaking ना, मतलब मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। एक बार फिर से बोलो। So it will depend upon number of times the ray of light reflects on the mirror surface. तुम्हारा मुखड़ा ना मेरे को आंखें दिख रही हैं, ये काली काली आंखें। थोड़ा सा ऊपर को भी दिखाओ ना, चेहरा पूरा का पूरा। ये बात बोला ना मेरा मनकोटिया। यस, अब बोलो मनकोटिया साहब। कौन सा बोले थे? अच्छा ठीक है, कौन साहब? सैनी साहब? हाँ गर्वित जी, हाँ बोलिए गर्वित जी। सही जवाब, 2 रुपए जीत गए आप, एकदम से पक्का। चलो और कोई बताएगा? अखिलेश, अनिकेश, सुहानी जी, हमारे मनकोटिया साहब, कोई भी बताएगा? आर्यन जी पता नहीं कहां रपट गए, यहीं पर है। देखो मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, मैंने आपको अभी तो बताया था n = 360/θ, बोला था ना? यस सर। तो थीटा क्या है भैया? 0 है। कहा है थीटा? ये बिहारी कौन बोला? अच्छा, थीटा जब 0 है तो फिर n कितना होगा? 360/0। अरे भैया इनफाइनाइट इमेजेस दिखाई देंगी। इज इट क्लियर? एक ना मैं आपको चीज बताता हूं, जब हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते ना, आपका आंसर गलत होता नहीं, आप ना गिल्ट, अरे हमें नहीं बहुत सारी चीजें आती यार, अब टेंशन फ्री होके पढ़ो। तो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, राइट? मैं आपको प्रोवोक करता हूं, बताओ ये कैसे। मालूम है यार, अगर आपको आता होता तो फिर मेरी क्लास की क्या जरूरत थी? आप मुझे ना पढ़ा रहे होते हैं, ठीक? मेरे को भी कभी नहीं आता था, एक वंस अपॉन ए टाइम मेरे को भी नहीं आता था ये, राइट? तो सीखा हमने भी। तो थीटा 0 इनफाइनाइट इमेजेस। अब मेरा क्वेश्चन शुरू होता है अब कि बोलो सर ये क्वेश्चन ही था अभी? नहीं, ये भी क्वेश्चन था, लेकिन एक और क्वेश्चन। इधर भी मिरर, इधर भी मिरर, बीच में हमारे गर्वित जी जरा बताइएगा आपको कितनी इमेजेस दिखनी चाहिए? इन्फिनिटी।
लेकिन दिखती कुछ ही हैं। क्यों? सर इमेज का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। कौन बोला? रिफ्लेक्शन। अरे यार गजब आंसर, बिल्कुल सही जवाब। पहले 2 रुपए जीते थे, अब 4 रुपए जीत गए आप। सही जवाब, तालियां, सही बोला। पता क्या है, देखो ये गार्विज जी, मैं गार्विज जी हूं, ठीक है। अब मैं गार्विज जी हूं, सॉरी गार्विज जी, मैं गार्विज जी बन जाऊं थोड़ी देर के लिए। हम सब लोग गार्बित हैं, राइट। तो इधर भी मिरर, इधर भी मिरर, तो मैं यहां यानी कि गार्बित यहां इमेज। अब ये इमेज जो इस मिरर में बनी, दूसरे मिरर के लिए ये क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जितना ये है प्लस यहां। अरे यार इसका इमेज यहां बना के नहीं भैया। अरे जितना हम मिरर के आगे खड़े होते हैं उतनी ही पीछे हमारी इमेज बनती है क्या ना? यस। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका डिस्टेंस यहां हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस यहां हुआ। अब आपको पता है इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैं आपको किसी चंडीगढ़, किसी कोटा के बच्चों से कम नहीं मानता, मैं आपको उसी लेवल का काम दूंगा। समझ आया कि नहीं? मान लो मैं आपको शुरू करता है, बेटा आज मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने वाला हूं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कैमरा बंद होने के बाद बोलता है यार ये क्या पढ़ा रहा है, ये तो पढ़ा ही हुआ है। मैम, अब प्रिंसिपल को बोलते, मैम को बोलते, मैम इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। मजा तो तब है वो चीज करवाओ जो आपने नहीं पढ़ी हुई और समझ भी आए। तो भैया डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुंदिस इंटेंसिटी डिक्रीज। गर्वित हुंदिस नहीं, क्या बोलना है? हुंदिस। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुंदिस, इमेज की इंटेंसिटी डिक्रीज और डिमिनिश हो जांदिस। वो हमको नजर नहीं आंदिस, इसलिए तो बेटा कुछ ही इमेजेस बन जांदिस। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना? लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक, तो मेरे हिसाब से किसी को पता नहीं लगा, हमें 54 मिनट्स हो गए पढ़ते हुए। और जो पढ़ा मां कसम याद होगा कि नहीं? पहला क्वेश्चन 360 अपॉन थीटा याद हुआ कि नहीं? फिर 360 अपॉन थीटा -1 याद हुआ कि नहीं? है ना? फिर उसके बाद आपने स्टडी किया वो पैरेलल वाला जिसमें 3 थीटा थीटा बनाया 180 डिग्री, याद हुआ कि नहीं? फिर आपको मैंने वो 2 पैरेलल मिरर दिखा के उसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस निकाली, याद हुआ कि नहीं? और यहां पर 2 पैरेलल मिरर लगा के इमेजेस बना दी, फिर ये भी बोला कि वो डिमिनिश क्यों होती है, याद हुआ कि नहीं? तो अब मुझे बताओ न्यूमेरिकल क्या टफ है? तो फिर ऐसे ड्रामा करते हो, हमको न्यूमेरिकल नहीं आते, हमसे बड़े मुश्किल। अबे न्यूमेरिकल की ओके ऐसी की तैसी, यही बोल रहा और नहीं कुछ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग थ्योरी में रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे आज। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर आप नोट करो ना करो तो रहती है स्क्रीन पे, ठीक है? एआई चैनल में तो चले जाओ आप लोग। हैव यू गॉन टू द चैनल? पता तो लगा विपिन सर है कौन, प्रोफाइल पर फुल देखो। मैं तो लोगों को अरे एक बार बताऊं, मैं एक जगह सेमिनार करने में मैं चला गया कहीं, मुझे एक प्रिंसिपल सर ने भेज दिया, मैं चला गया तो वहां एक बंदा आया बड़ा खड़ूस है। अब यू नो वी आर गुड पीपल, टैलेंटेड पीपल, हम जहां खड़े होते हैं वहीं से सिस्टम शुरू हो जाता है। बोलो वो बड़ा कुछ, मैंने कहा यार तू क्यों जल रहा है भाई? ठीक, तो पहले बताता मैं मिट्टी का तेल लेके आता और जल अच्छे से फूकता। तो हम लोग बहुत मस्ती में पढ़ने वाले हैं। बच्चे जो है ना, बच्चे वो टीचर को अंडरस्टैंड करते हैं। आप टीचर की फीलिंग को समझते हो, ठीक है? मैं आपके साथ खड़ा हूं। हमारा 1 घंटे की क्लास में कुछ ज्यादा नहीं होगा। मैं चाहता हूं
आज बैठ के पेरेंट्स से बात कर लो, हम थोड़ा डबल सेशन लगाएंगे, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगाएंगे एक टाइम पे, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 आवर से ज्यादा क्लास नहीं होनी चाहिए। एग्री करते हो? तो वो व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना कंसेंट भेजना, फिर हम एक टाइमिंग और रख लेंगे रात को, ठीक है? क्योंकि +2 है आपकी, तो आपके डाउट्स, मैं पता क्या चाह रहा हूं, आप मुझसे डाउट्स मैक्स, एक क्लास में तो आप ले लो मेरे से आगे का लेक्चर, एक क्लास में ले लो डाउट्स, चलेगा? राइट। तो आज आप रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? कर्व्ड मिरर पढ़ेंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, राइट, मैग्निफिकेशन, राइट। फिर उसमें से कोई जो आपका डाउट होगा वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। प्लस अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे तो मिरर फार्मूला पूरा का पूरा चाहिए, जी 1/v + 1/u = 1/f, सर मुझे ये चाहिए, मैं उसके लिए वो अलग से भी पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होप जितना मैंने आज आपको पढ़ाया आपको समझ आया। चलो अब क्विकली रिवाइज करते हैं। इफ यू रोटेट ए मिरर थ्रू एन एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न थ्रू एन एंगल, एक बंदा, जो भी बंदा बोलेगा आंसर करे माइक ऑन करके फटाफट, जल्दी से, टाइम नहीं है अपने पास। इफ यू रोटेट ए मिरर थ्रू एन एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न थ्रू एन एंगल टू थीटा। If we run towards the mirror with a speed of 5 meter per second, we have velocity of 5 meter per second, with what relative speed our image will run towards us? 10 meter per second. हाँ, if we stand before, relative velocity add हो जाती है ना। अब मैं आ रहा हूं आगे 5 मीटर पर सेकेंड और मेरी इमेज भी आगे आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, मेरे और मेरे इमेज के बीच के अंदर का डिस्टेंस कितना होने, सॉरी, वेलोसिटी ऐड हो जाती, v मेरी, v इसकी, तो 2v। if you stand before a mirror 5 meter, तो image will be found behind 5 meter, right? If the two mirrors are inclined at an angle theta, then the number of images will be 360 upon theta. If 360 upon theta is even, then it is 360 upon theta minus 1. Yeah. If it is odd, तो वही रहेगा, है ना? उसके बाद there is an inversion in the plane mirror, literal and 3-dimensional. In 2-dimensional there is a literal inversion, and in 3-dimensional there is left front back. Okay, so with that we got to complete this topic today. And any suggestion anybody like to give? Garvit, कुछ suggestion देना चाहोगे for this class or this? This is nice. Enjoyed it a lot. And समझ भी आया ना? मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मैं अब इंटरनेट है तो कोई चीज छुप नहीं सकती, राइट? तो मेरे को हनुमान जी बड़े पसंद हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु और उजागर, है ना? तो वो ज्ञान के गुण सागर हैं भाई, हनुमान जी मेरे फेवरेट है। हनुमान जी से किसी ने पूछा, मेरे को किसी ने पूछा कि हनुमान जी तुम उड़ते, मतलब आप उड़ते कैसे हैं हनुमान जी? तो मैंने हनुमान जी से बात कर ली, मैंने कहा सर मेरे को बताओ, फिजिक्स वाला हूं मैं, फिजिक्स पढ़ाता हूं। हनुमान जी बोलते बेटा एक बात बताओ, जब एप्पल गिरता है, जब सोडियम और क्लोरीन के बीच में अट्रैक्शन होती है तो क्या एक्सचेंज होता है? मैंने कहा सर इलेक्ट्रॉन। कहता जब भी कोई पार्टिकल अट्रैक्ट होता है, जब भी अट्रैक्शन होती है तो पार्टिकल एक्सचेंज होता है। मैंने कहा यस। कहता अगर तुम सोडियम और क्लोरीन को वाटर में डाल दो वो वापस Na+Cl- एक्वस हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी। कहता इसी तरह जब एप्पल जमीन पे गिरा था, न्यूटन तो खैर बाद की बात है, हमने तो वेदों में पहले से बता दिया था, जब जमीन पे कोई चीज गिरती है तो ग्रेविटोन पार्टिकल एक्सचेंज होता है, तुम एंटी ग्रेविटोन प्रोड्यूस कर दो, तुम उड़ जाओगे। अब भैया वो +2 के रिजल्ट के बाद ही करना, पहले पढ़ रहा हो, ठीक है? ओके, तो थैंक यू। अपन मिलते हैं कल फिर से, और आप अभी यूट्यूब पे चले जाना और व्हाट्सएप पे मुझे डाउट्स पूछना। एक मैंने ना यूट्यूब पे एक लेक्चर डाला है 1.5 मिनट का, 1.5 या 2 मिनट का, उसको जरूर सुनना, उसमें ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना। जब सभी लोगों के पास ऐप आ जाएगी तो हम ऐप से भी पढ़ सकते हैं, राइट?
Yes, sir. उसका प्लस पॉइंट क्या है कि साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग हो जाती है। अब मुझे अलग से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल। और एक, हाँ जी, कुछ कहना किसी ने? Thank you, sir. Good day. कल को जो बच्चे, जिन बच्चों के कैमरे ऑफ है ना, वो कृपा करके नहा के आए, मुंह धो के आए, ठीक। ये बच्चे जिनके कैमरे ऑन है ये नहाए हुए हैं, बाकी तो कोई नहाया ही नहीं हुआ आज। बाय, ठीक सर। Bye, sir. Good day. ओ बाय बाय, थैंक यू। हम लोग करते हैं, डबल करेंगे टाइमिंग। जी, sir. ओके बेटा, मेरी क्लास है +10th वाले आएंगे।